Hello dear learners. Today we are going to discuss about the types of different cells that are differentiated from hematopoietic stem cells. In the previous lecture or in the previous video of immunology lecture, we discuss about the basic concept of immunology. We discuss about innate immunity, adaptive immunity, active immunity, passive immunity, and the different mediators that are required to carry out the process of innate immunity. So, for this purpose, we already discussed about the different types of immune systems and the mediators, the difference between innate immunity and adaptive immunity, active immunity and passive immunity. Now, what are the different types of cells that are involved in the immune systems? We are going to discuss in today's video lecture. Hematopoietic stem cell is nothing but it is a pluripotent cell, that is it will be going to differentiate into variety of cells. Generally it differentiate into two cells like myeloid progenitor cell and lymphoid progenitor. These are the origins. Stem cells are present in the bone marrow. It is very important part in which stem cells are generated and that presented in bone marrow, and differentiation of the process will be carried out. So for this we will see when the hematopoietic stem cells, that is the pluripotent stem cell, is differentiated into two progenitor cells like myeloid progenitor cells and lymphoid progenitor cells. Myeloid progenitor cells that have some subtypes like monocytes. Monocytes, they are going to mature into macrophages or dendritic cells. Another cell is basophil, eosinophil, neutrophil, mast cell, platelets and RBC. And lymphoid progenitor cell contains dendritic cells, natural killer cells, B cell and T cells. So what are the specific and the basic concept of these progenitor cells? We will discuss in this video lecture. So first of all, we will discuss about myeloid progenitor cell, in which first cell is like your monocytes or the granulocytes. Granulocytes that are having irregular shaped nuclei with 2 to 5 lobes. They are often also called as polymorphonuclear leukocytes. Their cytoplasmic matrix has granules that contain reactive substance that kill microbes and enhance inflammation. ग्रैनुलोसाइट्स ऐसे कुछ सेल्स हैं, उनके पास कुछ इरेगुलर शेप न्यूक्लिया है और वो प्रेजेंट होते हैं कुछ लोब्स में, जैसे 2 लोब हो गए जिसे हम बन गएंगे बाइलोब, 5 लोब्स हो गए, ठीक है। जैसे उनको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। और उनका जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल के पास साइटोप्लाज्म होता है, उसमें कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो ग्रैन्यूल्स के अंदर कुछ रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। वो रिएक्टिव सब्सटेंस अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल, कुछ एंटीजन अगर आ जाता है तो उनके साथ रिएक्ट होके उनको किल कर देता है और इन्फ्लामेशन का जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट कर देता है। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ granulocytes. First is your basophil, second is your eosinophil and third one is your neutrophil. First of all we will see about the neutrophil. Neutrophil have multi-lobed, ठीक है, 1 से या 2 से भी ज़्यादा उनके पास लोब्स प्रेजेंट है इन न्यूक्लियाई. सो दे हैव मल्टी लोब न्यूक्लियाई. और उसका जो साइटोप्लाज्म है जब हम उसे स्टेन करेंगे, दैट कैन बी स्टेन विथ बोथ एसिडिक और बेसिक डाइज. आपने FIBSC माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा
there are the different varieties of stains like acidic stain, basic stains या basic dyes, acidic dyes. so अगर आप न्यूट्रोफिल का मतलब ही है वो न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है. सो यू कैन स्टेन विथ बोथ एसिड और basic dye or basic stain. The cytoplasm will going to indicate 50 to 70% of circulating white blood cells जो होते हैं न्यूट्रोफिल के कंटेंट करेंगे, ठीक है. मूवमेंट ऑफ सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल टू टिश्यू इज कॉल्ड एक्सट्रावाइजेशन. मूवमेंट ऑफ सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल टू टिश्यू उसे हम बोलते हैं एक्सट्रावाइजेशन. लाइक मैक्रोफाज दे आर टू एक्टिव फाइगोसाइटिक सेल. अभी मैक्रोफाज क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म या एक सेल है जो इन्वेड करता है फॉरेन पार्टिकल्स को. उसको इन्वेड करने के बाद, फॉरेन पार्टिकल्स को इन्वेड करने के बाद कुछ लाइसोसोम या कुछ वेसिकल्स में उसको एंट्रैप कर देगा. उसे अपन फैगोलाइसोसोम भी बोलते हैं या फैगोसोम बोलते हैं. एंट्रैप करने के बाद उसका डिग्रेनुलेशन हो जाएगा या फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा और उसके बाद एंडोसाइटोसिस, मतलब उसको वो सेल के बाहर फेंक देगा. तो ये फैगोसाइटिक सेल का काम होता है, ठीक है. सो न्यूट्रोफिल दे आर ऑल्सो एक्टिव फैगोसाइटिक सेल. नेक्स्ट वन इज योर इओसिनोफिल. इओसिनोफिल इट्स हैव bilobe nucleus and it also stains with acidic dye that is eosin. अभी eosin जो है it is like stain with acidic dye that is eosin और इसका जो न्यूक्लियस है वो है बाइलोब्ड. It comprises 2 to 5% of WBC and they are motile phagocytic cell. eosinophils भी जो है वो भी phagocytic cells है. इओसिनोफिल शो करते हैं डिफेंस अगेंस्ट प्रोटोजोन्स एंड हेलमिन्स, जो भी पैरासाइट्स होंगे उसके अगेंस्ट. इओसिनोफिल मेनली रिलीजेस कैटायनिक पेप्टाइड्स एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन. बेसोफिल्स दे हैव लोब्ड न्यूक्लियस, मतलब सिंगल लोब बेसोफिल्स में प्रेजेंट है. और basophil, that the word self is explanatory. With like basophil cell it's stained with basic dye that is your methylene blue. Less than 1% of WBC ये comprise करता है. Basophil they are non-phagocytic and that releases the substance that cause allergic response. They have high affinity for one class of antibody that is IgE. IgE का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन E. ये एक टाइप है एंटीबॉडी का या एक क्लास है एंटीबॉडी का. न्यूट्रोफिल एंड इओसिनोफिल ये दोनों सेल फैगोसाइटिक सेल है, मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक सेल है. लेकिन बेसोफिल ये नॉन फैगोसाइटिक सेल है, लेकिन ये कुछ सब्सटेंस ऐसे रिलीज करता है जिसके कारण एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है. हाइपर सेंसिटिविटी नाम का एक कंसेप्ट है जिसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट होती है और वो इट इज़ रिलेटेड टू द एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ई. नेक्स्ट इज योर मास्ट सेल. मास्ट सेल जो है ये प्रिकर्सर से, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट है. दैट प्रिकर्सर्स आर फॉर्म इन द बोन मैरो. बोन मैरो में ये फॉर्म होने वाला है और उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा. व्हेन दे रीच टिश्यू ये भी एक एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है और इसको भी हाई एफिनिटी है फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी. नेक्स्ट इज योर मैक्रोफाज. मैक्रोफाज दे आर ऑल्सो फैगोसाइटिक सेल. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द मोनोसाइट्स. अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि मोनोसाइट्स दे आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट और मैच्योर इनटू मैक्रोफाजेस और डेंड्राइटिक सेल. So macrophages are phagocytic cell that is derived from blood monocytes. Presence of membrane receptors such as complement proteins, cytokines, TLR जहाँ पे अपन ने पढ़ा था toll like receptor, ठीक है. Production of cytokines such as interleukin 12, interleukin 10, fibroblast growth factor. अभी हमने साइटोकाइंस पढ़े थे जो लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स हैं, ठीक है. वो कौन कौन से हैं? जैसे इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 10. ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और सिग्नल सीक्वेंसेस जो है लाइक
मैक्रोफेजेस होंगे तो उनके पास प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। मैक्रोफेजेस का एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, ये एक एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करती है। इसे अपन बोलते हैं एपीसी, दैट इज़ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और फैगोसाइटोसिस का मेन रोल है मैक्रोफेजेस का। देन नेक्स्ट वन इज अ डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल दे अराइज फ्रॉम बोथ माइलॉइड एंड लिम्फॉइड लीनिएजेस। आपने यहाँ पे देखा होगा माइलॉइड लीनिएजेस या माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल के पास भी डेंड्राइटिक सेल है, लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल के पास भी डेंड्राइटिक सेल है। मतलब दिस सेल इज ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम बोथ माइलॉइड एंड लिम्फॉइड लीनिएजेस। डेंड्राइटिक सेल का काम होता है दे एक्वायर द एंटीजन बाय फैगोसाइटोसिस, एंटीजन इज प्रोसेस्ड एंड मैच्योर डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट इट टू द टी हेल्पर सेल। सो इनका काम जो होता है, ये फैगोसाइटोसिस के द्वारा एंटीजन को अंदर ले आते हैं, एंटीजन को वो प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के लिए मॉडिफिकेशन की कुछ प्रोसेस है, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटिक एंड एक्सोजिनस कुछ पाथवेज है। फिर वो जो सेल्स है, जो एंटीजन है, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं टी हेल्पर सेल को, और उसके बाद वो सेल का अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट होता है। डेंड्राइटिक सेल ऑल्सो एक्ट एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, सो आपको अभी तक दो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो पता चली है। पहला है मैक्रोफेजेस, दूसरा है डेंड्राइटिक सेल। There are four types of dendritic cell. First one is your Langerhans cell, interstitial, myeloid and lymphoid cell. So यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा myeloid progenitor lineages और myeloid progenitor cells. Now we are going to discuss about the lymphoid progenitor cells. So what are they? They are lymphocytes. Lymphocyte means what? These are mononuclear leukocyte which constitutes 20 to 40% of total WBC, and they are three major types: B cell, T cell and natural killer cell. Natural killer cell that plays a crucial role in destroying cells infected with the intracellular pathogen. They destroy the pathogen not by phagocytosis but releasing biological potent molecule. It is capable of killing malignant and virus infected cell without previous contact. It carries out the destruction of cancer cell either by recognizing unusual markers on them or through a mechanism called antibody dependent cell mediated cytotoxicity. उसे mechanism को बोलते हैं ADCC. A natural killer cell also expresses the CD16 membrane receptor for Fc region of the antibody. Fc means fragment crystallization region. सो इन शॉर्ट नेचुरल किलर सेल का काम क्या है कि वो इन्फेक्टेड जो भी सेल्स हैं जहाँ पे इंट्रासेल्युलर पैथोजन की वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाए तो नेचुरल किलर सेल उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो फाइगोसाइटोसिस का मैकेनिज्म नहीं यूज़ करता, वो क्या करता है, एक कुछ मॉलिक्यूल सीक्रेट करता है जिसके कारण वो सेल जो है द फॉरेन पार्टिकल इट विल गोइंग टू डिस्ट्रक्ट. So this is all about the natural killer cell. Now there is a two main important cells. Like first one is your B cell. B cell shows that when B cell is going to interact with the antigen or it encounter with the antigen that differentiated into antibody secreting plasma cell and memory cell. They also serve as एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. अभी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो ये वर्ड है या डेफिनेशन है कि आपको कभी भी MCQ आएंगे कुछ इम्पोर्टेंट, आप अगर एग्ज़ाम्स देते हो तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ द APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या उसी को बोलते हैं प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन से हैं और कितने हैं. तो इसका आंसर आता है कि 3 प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है. फर्स्ट वन इज़ योर मैक्रोफाज, सेकेंड वन इज़ योर डेंड्राइटिक सेल एंड थर्ड वन इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल दैट इज़ बी सेल. दीज 3 सेल्स आर मोस्ट प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. अभी बी सेल का काम क्या होता है कि वो जब भी किसी एंटीजन के साथ, फॉरेन पार्टिकल के साथ अगर इंटरैक्ट हो जाए तो वो
डिफ्रेंशिएट होता है, मतलब उसके डिवीजन होता है दो सेल्स में। पहला बनता है प्लाज्मा सेल, दूसरा बनता है मेमोरी सेल। और जो प्लाज्मा सेल होता है वो एंटीबॉडी बनाता है किसके अगेंस्ट, वो पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है बी सेल की, ओरिजिन कहाँ पे है, बोन मैरो, मैचुरेशन कहाँ होता है, बोन मैरो, ठीक है। लेकिन अगर बर्ड्स हो तो बर्ड्स में वो बोन मैरो में मैच्योर नहीं होगा, बर्सा ऑफ फैब्रिशियस उसमें वो मैच्योर होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ एंटीजन रिसेप्टर, अगर एंटीजन का रिसेप्टर है और उसको एक्सप्रेस करना है तो वो भी बोन मैरो में होता है। डिफ्रेंशिएशन जो है वो लिम्फेड टिश्यू में होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट है। इम्यूनिटी कौन से टाइप की है, ह्यूमरल, जहाँ पे आपने एडेप्टिव इम्यूनिटी पढ़ा था उसके दो टाइप्स थे, ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड। तो बी सेल की प्रॉपर्टी है वो ह्यूमरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी शो करता है। सिक्रेटरी प्रोडक्ट कौन कौन से है, एंटीबॉडीज एंड साइटोकाइंस, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रोटीन्स आल्सो प्रेजेंट इन बी सेल। नेक्स्ट वन इज योर टी सेल। टी सेल डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। कौन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, सिर्फ बी सेल। टी सेल डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बट व्हेन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, अभी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन से हैं, तीन है, बी सेल, मैक्रोफाज एंड डेंड्राइटिक सेल। वो जब एंटीजन को लेके आते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मतलब क्या कि वो सब लेके आने वाले हैं टी सेल के पास। टी सेल तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो वो उसको लेके आएंगे और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में लेके जाएंगे, तो वहाँ पे टी सेल उसको इलिमिनेट कर देगा। देयर इज अ टाइप ऑफ टी सेल, कौन कौन से, टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल। उसी को इनिशियल दिया है टी एच सेल एंड दूसरे को दिया है टी सी सेल। टी हेल्पर सेल फॉर टी एच, टी साइटोटॉक्सिक सेल फॉर टी सी। टी हेल्पर सेल ये कैरी करता है CD4 मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑन देयर सरफेस। टी साइटोटॉक्सिक सेल कैरी करता है CD8+ मेम्ब्रेन रिसेप्टर और सरफेस प्रोटीन ऑन मेम्ब्रेन। टी हेल्पर सेल जो है वो डिफेंस करता है अगेंस्ट बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो या इंट्रासेल्युलर पैथोजन हो, लेकिन टी साइटोटॉक्सिक सेल ओनली डिफेंस अगेंस्ट इंट्रासेल्युलर पैथोजन। और इन दोनों के पास एक कॉमन रिसेप्टर भी प्रेजेंट है, उसे कहते हैं CD3। CD4 CD8 ये जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन्स है वो रिकॉग्नाइज करने के लिए होते हैं। बाहर की जो सेल्स आती है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स लेके आते हैं एंटीजन को, उनको रिकॉग्नाइज करने के बाद उनको बाइंड करने के लिए ये रिसेप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टी सेल, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी हेल्पर सेल जो है वो कैरी करेगा CD4+ मेम्ब्रेन रिसेप्टर एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल कैरी करेगा CD8+ मेम्ब्रेन रिसेप्टर। टी हेल्पर सेल डिफेंस करेगा अगेंस्ट द पर्टिकुलर और द बोथ एक्स्ट्रा सेल्युलर एंड इंट्रासेल्युलर पैथोजन। टी साइटोटॉक्सिक सेल डिफेंस करेगा अगेंस्ट इंट्रासेल्युलर पैथोजन ओनली। और इन दोनों के पास CD4 CD8 तो है ही, लेकिन ये दोनों CD3 भी रिसेप्टर एक्सप्रेस करते हैं। दोनों के पास CD3 ये रिसेप्टर एक्सप्रेस वो करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है टी सेल की, इसका ओरिजिन क्या है, बोन मैरो, लेकिन मैचुरेशन है इसका थाइमस। आपने अगर बी सेल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी तो ओरिजिन भी है बोन मैरो, मैचुरेशन भी है बोन मैरो, लेकिन थाइमस टी सेल जो होता है वो मैचुरेशन जो है उसका थाइमस में है, ओरिजिन कहाँ पे है, बोन मैरो। एक्सप्रेशन ऑफ एंटीजन कहाँ पे है, थाइमस, उसका कहाँ, बी सेल का कहाँ पे था, बोन मैरो में। डिफ्रेंशिएशन ये भी लिम्फोइड टिश्यू में होता है, वो भी होता है। सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है क्योंकि टी सेल डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। इम्यूनिटी सेल मेडिएटेड एज वेल एज ह्यूमरल, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल मेडिएटेड, इसलिए उसको नाम भी दिया गया है टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सिक्रेटरी प्रोडक्ट साइटोकाइन, वहाँ पे क्या क्या था, एंटीबॉडीज एंड साइटोकाइन, ये सिर्फ साइटोकाइन सिक्रेट करता है। और रिसेप्टर कौन सा है, TCR, मतलब टी सेल रिसेप्टर ऑन मेम्ब्रेन। So this is all about the different cells or the differentiation from the one cell, that is stem cell or hematopoietic stem cell or the pluripotent cell, from the bone marrow that is present in bone marrow, and they are the two main lineages like myeloid progenitor and or the myeloid lineage or the lymphoid lineage, and there are the different varieties of subdivision of that cells. So if you have any question related to this, you can ask in the comment section.
Till then, thank you. Revise from the first lecture of immunology to till this lecture.